باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد دوم، حکایت نمبر 41۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظالموں کے غلبے کے راز کا سوال کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے کارساز کریم، میں اس دنیا میں ہونے والی اچھی بری چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ اس میں آپ کا مقصد کیا ہے؟ کہ ایک نقش بنانا اور پھر اس میں فساد کا بیج بو دینا، ظلم، فساد، خون خرابہ۔ میں جانتا ہوں کہ اس میں تیری حکمت ضرور ہے، لیکن میں یہ راز معلوم کرنا چاہتا ہوں، جیسے تو نے فرشتوں پر اپنا راز ظاہر کر دیا تھا۔ تو نے آدم علیہ السلام کو کھلم کھلا علم میں فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا اور ان کے شکوک رفع فرما دیے، ان کو سمجھا دیا کہ انسان کے متضاد گواہی خلافت خداوندی کے اہل اور صفات خداوندی کا مظہر ہو سکتے ہیں۔ ہر چیز کی خوبی اس کے انجام سے ظاہر ہوتی ہے۔ قیامت میں معلوم ہوگا کہ موت جیسی تلخ چیز کے پیدا کرنے میں خدا کی حکمت یہ تھی کہ وہی اخروی نعمتوں کے حصول کا سبب بنے۔ خون اور نطفہ جیسی گندی چیزوں کے قوام کا حسن جب ظاہر ہوتا ہے، جب انسان جوان اور حسین بن جاتا ہے، تختی پر سب سے پہلے نقش مٹا دیا جاتا ہے، پھر اس پر حسین نقش بنائے جاتے ہیں۔ انسان رو رو کر دل کو خون بنا دیتا ہے تو پھر اس پر اسرار نمودار ہوتے ہیں۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے تخریب میں تعمیر کا راز چھپا رکھا ہے۔ دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اسی لیے مبتلا کرتا ہے کہ آخرت میں راحت میسر آئے۔ انسان نفس کی خواہشوں کے خلاف عمل کرتا ہے تو جنت پاتا ہے، شہوتوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تو دوزخ میں جاتا ہے۔ جنگوں کی مشقیں برداشت کرنے کے بعد تخت شاہی حاصل ہوتا ہے۔ محنت کی کمائی پر صبر کرنے سے انسان دولت کا مالک بنتا ہے۔ جب محنت و مشقت کے بعد راحت ہے تو ظالموں کی پیدائش مظلوموں کی راحت کا سبب بنے گی۔ ظالموں کی پیدائش میں یہی حکمت ہے۔ جب تک انسان ظاہری حواس کی قید و بند میں ہے، اس کی نظر اسباب پر ہوتی ہے، اس کو اسباب اختیار کرنے ضروری ہیں۔ جب حواس سے آزاد ہو جاتا ہے تو ہر چیز کو بغیر اسباب کے قدرت الہی سے سمجھتا ہے، تب اس کے لیے ترک اسباب جائز ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کے معجزات اسباب سے متعلق نہیں ہوتے، بلکہ محض اللہ کی قدرت سے ان کا ظہور ہوتا ہے۔ ریاضات کی وجہ سے ظاہری حواس سے انسان آزاد ہو جاتا ہے تو تمام اشیاء کو بھی وہ اللہ کی قدرت سے سمجھتا ہے، اسباب سے متعلق نہیں کرتا۔ عام انسانوں کے لیے اسباب کا اختیار کرنا ایسا ہی ضروری ہے جیسا مریض کے لیے طبیب، لیکن کاملین اسباب اختیار کرنے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ دراصل خاص مقام اور تجلی پیدا نہ ہونے کی وجہ سے جسم پروری ہوتی ہے۔ علم و معرفت روح کا حصہ ہے، نفس اس سے بے بہرا ہے۔ نفس خواہشات کے لیے واویلا کرتا ہے، تو ان کو پورا کر دیتا ہے۔ یاد رکھ، روح کی پرورش کر، نفس کو روح پر غالب نہ بنا۔ جس طرح حدیث میں عورتوں کے بارے میں ہے، مؤخر کرو ان کو جبکہ مؤخر کیا ہے ان کو اللہ نے، اسی طرح نفس کو عقل سے مؤخر رکھنے کا حکم ہے۔ اگر تو عقل سے نفس کو مغلوب بنا دے گا تو نفس میں بھی عقل کے خواص پیدا ہو جائیں گے۔ جب انسان کی روح کمزور ہو تو نفس کو بہت زیادہ غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ شیخ کا کام مردہ روحوں کو زندہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کی تربیت میں کسی بات سے دل کو رنج بھی پہنچے تو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ ذریعہ صحت وہی ہے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، یہود نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ اے یوسف علیہ السلام، بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ لیکن آپ لوگوں کا کام تو درگزر کرنا ہی ہے۔ اسی طرح شیخ کی توجہ روح کی بلید کی بخشتی ہے، لیکن صفراوی مزاج والے بد کردار لوگ ہمیشہ حسد کے درد سر میں مبتلا رہتے ہیں۔ جس طرح سورج باوجود نالائکیوں کے سب کو منور کرتا ہے، اسی طرح اے شیخ آپ بھی اپنے مریدوں کی بد کرداریوں کی وجہ سے ان کو فیض سے محروم نہ کرتے۔ ہم اسی قابل ہیں کہ ہم سے آپ کو تکلیف پہنچے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ
मेरी कौम को हिदायत दे दे। अक्लमंद की सख्ती से नालायकों की इस्लाह होती है, क्योंकि अक्लमंद इल्म व मारिफत पर अमल करता है और जाहिल महज जुबान ही से जिक्र करता है। इसलिए अक्लमंदों से दोस्ती अच्छी है, नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। जिल्द दोम, हिकायत नंबर 42। एक अमीर का उस सोने वाले को तकलीफ देना जिसके मुंह में सांप घुस गया था। एक अक्लमंद घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था। उसने देखा कि एक सोए हुए आदमी के मुंह में सांप घुस रहा था। उसको जोर जोर से कोड़े मारने लगा। वो उठा, सवार उसको मारता हुआ एक सेब के दरख्त तक दौड़ाता ले गया। वहां बहुत से सेब उसे खाने को कहा, इतने खिलाए कि मुंह से बाहर निकलने लगे। वो चीखा कि ऐ सरदार, क्यों मेरी जान के दुश्मन बने हो? एक ही दम तलवार मारकर खत्म कर दो। क्यों बेखता मुझ पर जुल्म कर रहे हो? सवार ने फिर उसे कोड़े मारने शुरू किए और उसे भगाया। दौड़ते दौड़ते उसे जबरदस्त कै आई, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था। सब कुछ खाया हुआ बाहर निकल आया तो सांप भी उसमें बाहर निकल आया। जब उसने अपने पेट में से सांप निकलता देखा तो सवार के सामने सजदा रेज़ हो गया। इसी तरह अल्लाह की कुदरत के राज कयामत में खुलेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम का भी उस वक्त मुनकरीन को पता चल जाएगा। जान लो कि सवार ने अक्लमंदी से उसके पेट का सांप निकाल दिया। इसलिए अक्लमंद की दुश्मनी बेवकूफ की दोस्ती से बेहतर होती है। जिल्द दोम, हिकायत नंबर 43। एक शख्स का रीछ की चापलूसी और वफादारी पर भरोसा करना। एक अजदहा एक रीछ को पकड़कर खींच रहा था। एक बहादुर ने देखा तो उसकी मदद को पहुंचा। बहादुरों का काम ही यह है कि वो मजलूमा की मदद को दौड़े। बहादुरों की मोहब्बत बगैर किसी गर्ज और रिश्वत के होती है। उनका मकसूद ही मेहरबानी करना होता है। वो मेहरबानी करने की इस तरह जुस्तजू करते हैं जैसे शिकारी शिकार की। दवा का महल दर्द है, इसी तरह बख्शिशो अता का महल फक्र है। पानी का महल नशेब है, प्यास पैदा करो ताकि पानी तुम तक पहुंचे। कुरान में है कि अपने अंदर पस्ती पैदा करो, रहमत के पानी का महल बन जाओगे। किसी मुकाम पर न रुको, फजले बेपाया के तालिब रहो। इस कदर मुजाहिदे करो कि आसमान तुम्हारी कदम बोसी करने लगे, फिर असरार हक सुन सकोगे। चश्मे बसीरत के वसवास को पड़बाल से साफ कर लो ताकि असरार गैब देख सको। हवा से बातिना को नफसानी ख्वाहिशों से साफ कर लो, तब आलम गैब की लज्जतों से मुस्तफीद होगे। आला सलाहियतें पैदा करो ताकि खुद मजहर कमालात बन सको। तुम्हारा जिस्म तुम्हारे लिए बेड़ी है, इस बेड़ी को उतार फेंक, फिर तुझे नया नसीबा हासिल होगा। खुदा की रहमत को मतवज्जो करने का सबसे कवी सबब इंसान की गिरिया उसारी है। माँ बच्चे को दूध पिलाने का बहाना ढूंढती है। अल्लाह ने इंसान के पीछे जरूरतें लगा दी हैं जिनकी बदौलत इंसान गिरिया जारी करता है। गोया जरूरतें मिसले बच्चा के हैं। अल्लाह के कामों में लगने की वजह से रिज्क की कमी का अंदेशा शैतानी वसवसा होता है। शैतान तुम्हें फक्र से डराता है, लेकिन नजर हमेशा नतीजा पर होनी चाहिए। जो आवाज तुम्हें आलम बाला की तरफ ले जाना चाहे उसे आलम बाला की आवाज समझो। जो आवाज लालच पैदा करे उसे बेड़िए की आवाज जान। इज्जत की बुलंदियां जगह के एतबार से नहीं होती बल्कि अक्लो जान की तरफ से होती हैं। चकमाक की वजह से चिंगारियां बनती हैं। उसको शर्फ ज़मानी हासिल है, लेकिन मकसूद चूंकि चिंगारियां हैं इसलिए वो मुकद्दम है। शाख को फल पर तकद्दम ज़मानी हासिल है, लेकिन शर्फ में फल मुकद्दम है। अजदहे में ताकत तो थी, तदबीर न थी। बहादुर में ताकत भी थी और तदबीर भी। बहादुर अजदहे पर गालिब आ गया, लेकिन इंसान को अपनी तदबीर पर घुमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा की तदबीर इंसान की तदबीर से ज्यादा कवी है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, बेशक अल्लाह तदबीर करने वालों में सबसे बेहतर है। इसलिए अपनी तदबीर को भी खुदा की अता करदा समझो। मसाइब में फंस कर ज़ाते हक से गफलत हो जाती है, लेकिन जब इंसान इसको मिन जानब अल्लाह समझ लेता है तो गम का अजाला भी हो जाता है। यही नूर है। अपनी आंख को नूर मारिफत का आदी बनाना चाहिए। जिस शख्स को नूर मारिफत हासिल हो जाता है वो हमेशा अंजाम पर नजर रखता है। फौरी शाहवतें पूरी करने से आखिरत की खुशियां
मदूम हो जाती हैं। आकिबत में शेख कुदरत के सदहा जलवे देखता है। इंतहाई बेवकूफ़ी है कि कुदरत का मामूली करिश्मा देखकर अपने आप को शेख कामिल से मुस्तगनी समझ लिया जाए। सामरी ने नील अबूर करते हुए फरिश्ते के घोड़े की तासीर देखी कि उसके कदम के नीचे सब्ज़ा उग पड़ता। उसने इस मट्टी से ये काम लिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर हाजिरी में चांदी सोने का बछड़ा बनाकर वो मट्टी उस पर डाली। उसमें जिंदगी के आसार पैदा हो गए तो कौम को उसकी परस्तिश पर लगा दिया और मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बद्दुआ दी तो ये हाल हो गया कि किसी के जिस्म से उसका जिस्म मिल जाता तो उसे बुखार हो जाता। बाज़ औक़ात इंसान भलाई के लिए तदबीर करता है, वही उसकी हलाकत का बायस बन जाती है। इस हलाकत से बचने का यही तरीका है कि अपने आप को शेख के हवाले कर दिया जाए। मुरीद में चाहे जो भी कमालात हो जाएं, उसका शेख से गहरा ताल्लुक जरूरी है। अपने आप को शेख से मुत्तहिद कर दो। इंसान इस धोखे में तबाह हो जाता है कि अपने जैसे इंसान को शेख कैसे बना ले। शेख की रजामंदी शक्कर की तरह है। अगर शेख का दामन थामे रहोगे तो तुम्हें वसावस की हलाकत से निजात मिल जाएगी। अगर तुम्हें सलाहियत नहीं तो गिरिया जारी करो, अल्लाह किसी शेख की तरफ राहबरी कर देगा। रीछ चीखा चिल्लाया तो बहादुर उसकी मदद को पहुंचा। जिल्द दोम हिकायत नंबर 44। एक अंधे भिखारी का लोगों से ये कहना कि वो 2 अंधेपन रखता है। एक अंधा कह रहा था, ए लोगो, मैं दुगना अंधा हूं, मुझ पर दुगना रहम करो। लोगों ने पूछा, ये दुगना अंधापन क्या है? एक अंधापन तो नजर आ रहा है, दूसरा कहाँ है? वो बोला, दूसरा अंधापन यह है कि मेरे कौल और नाला में दर्द नहीं है, इसलिए दुगना रहम के काबिल हूँ। लोगों को उसकी पुरदर्द गुफ्तगू सुनकर उस पर रहम आ गया। चूंकि उसने शिकवा दर्दमंदों के सामने किया, लिहाजा उसका असर हुआ। अगर किसी की आंख अंधी हो, आवाज में भद्दापन हो और फरियाद में दर्द भी ना हो तो 3 अंधेपन जमा हो जाते हैं। लेकिन 3 किस्म के अंधे को मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बख्शिश करने वाले जो बगैर सबब देते हैं, हो सकता है उसके बदनसीब सर पर हाथ रख दें। जब रीछ की फरियाद उसके बचाव का सबब बन गई तो तेरा रोना भी ऐसा होना चाहिए कि नापसंदीदा ना हो। कुरान में है कि काफिरों से कहा जाएगा, दूर रहो, इसी में पड़े रहो, मुझसे कलाम न करो। ये कुफार से उस वक्त कहा जाएगा जब वो जहन्नुम से निकलने के लिए वावेला करेंगे। उनके कबूल ना होने की वजह यह है कि उन्होंने हकूकुल नफ्स या हकूकुल इबाद को तलफ किया। जिल्द दोम हिकायत नंबर 45। उस बेवकूफ का किस्सा जिसने रीछ की वफादारी पर भरोसा किया था। रीछ निजात पाकर उस बहादुर का साथी बन गया। थकन की वजह से वो नेक आदमी लेट गया और ताल्लुक के खातिर की वजह से रीछ उसका मुहाफिज बन गया। एक शख्स वहां से गुजरा तो पूछा, ये रीछ तेरा कौन है? उसने सारी बात बताई तो वो शख्स बोला, रीछ से दिल न लगा, क्योंकि बेवकूफ की दोस्ती दुश्मनी से बदतर होती है। बहादुर ने कहा, तू ये बात हसद की वजह से कह रहा है, रीछ को न देख, उसकी मोहब्बत को देख। वो बोला, बेवकूफों की मोहब्बत फरेब देने वाली होती है, मेरे साथ आ जा, हम जिन्स को न छोड़। बहादुर बोला, ए हासिद, जा अपना काम कर। वो बोला, भले आदमी, रीछ को छोड़ दे ताकि मैं तेरा दोस्त बन जाऊं। मेरे दिल में तेरे मुताल्लिक खतरा है। मेरा ये खतरा ख्वाह मखा नहीं है, अल्लाह के नूर की वजह से है। मैं मोमिन हूँ और अल्लाह के नूर से देखता हूँ। नसीहत करने वाले ने रीछ वाले का हाथ पकड़ा, लेकिन उसने उससे हाथ छुड़ा लिया। चूंकि वो बददिमाग था, नसीहत करने वाले के बारे में कोई भला ख्याल उसके दिल में ना आया। इसकी बजाय उसका नेक गुमान रीछ पर था। बदबख्ती की वजह से वो जहल का ताबिया बन गया। जिल्द दोम हिकायत नंबर 46। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक बछड़े को पूछने वाले से फरमाना कि तेरी समझ कहां गई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बनी इसराइल के साथ दरियाए नील पार किया तो बतौर मौजज़ा रास्ता बिल्कुल खुश्क हो गया था। मैदान तिया में बनी इसराइल पर 40 साल तक आसमान से
मनोसलवा उतरता रहा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा की ज़र्ब से 12 चश्मे फूट पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत से मौजज़े अता फरमाए थे। बनी इसराइल में से एक जादूगर सामरी नामी ने दरिया पार करते वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़ों के कदमों की मट्टी हासिल कर ली और धात से बने हुए बछड़े की बुत पर डाल दी, जिससे उसमें जिंदगी के आसार पैदा हो गए। इस तरह सामरी ने बनी इसराइल को गुमराह कर दिया। उनमें से एक से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए बदबख्त, तूने मेरे इतने मौजज़े देखे और फिर भी मेरी पैगंबरी पर शक किया और सामरी की जादूगरी का कायल हो गया। क्या बछड़ा खुदाई के लायक हो सकता है? तूने अल्लाह के नूर से आंखें चुराई, तेरी अकल पर तुफ़ है। बछड़ा सिर्फ बोला तो तूने उसे मान लिया और मेरे तज्जुब खेज मौजज़े देखे और भूल गया। लग़्व लोगों को लग़्व चीज ही अच्छी लगती है। हर जिन्स अपनी जिन्स की तरफ मतवज्जो होती है। भेड़िया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का साथी कब हो सकता है? लेकिन अगर भेड़िएपन से निजात हासिल कर ले तो असहाबे कहफ के कुत्ते की तरह इंसान बन जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नेक सीरत थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखकर ही पुकार उठे कि ये चेहरा झूठा नहीं है। अबू जहल असहाबे दर्द में से ना था। शक्कुल कमर पर भी यकीन न किया। इंसान का आईना दिल साफ हो तो अच्छी बुरी सूरत में इम्तियाज किया जा सकता है। जिल्द दोम हिकायत नंबर 47। नसीहत करने वाले इंसान का हद दर्जा नसीहत के बाद रीछ से धोखे में पड़े हुए आदमी की नसीहत को तर्क कर देना। उस मुसलमान ने बेवकूफ रीछ वाले पर लाहौल पड़ी और नसीहत करना बंद कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि उनसे एराज करें, क्योंकि उन पर नसीहत बेअसर होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के सरदारों को कुरान सुना रहे थे। इस असना में सहाबी उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु हाजिर हुए और कुरान सुनाने की फरमाइश की। ये सहाबी नाबीना थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नागवारी के आसार पैदा हुए और उन सरदारों से गुफ्तगू को ख़त्म करना पसंद न किया तो सूराए अबस नाज़िल हुई। अल्लाह को उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत पसंद आई। फरमाया, ए अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नज़दीक ये अंधा सैकड़ों बादशाहों से ज़्यादा बेहतर है। यहाँ माल मुफीद नहीं है, इश्क से और आह से बरा सीना दरकार है। अगर काफिर सरदार आपको नहीं मानते तो ना माने। चमगादड़ों की सूरज से नफरत उसके रोशन होने की दलील है। गोबर का कीड़ा अगर गुलाब से रगबत करने लगे तो उसका गुलाब होना मशकूक हो जाएगा। कामिल का इनकार तो उसके कमाल की दलील है। जिल्द दोम हिकायत नंबर 48। एक दीवाने का जालिनूस की खुशामद करना और जालिनूस का उससे खौफज़दा होना। जालिनूस ने अपने शागिर्द से जुनून की दवा मांगी। शागिर्द बोला, ऐ साहबे कमालात, आप जुनून की दवा मांगते हैं? उसने कहा, मुझे एक दीवाने ने गौर से देखा है। अगर मुझ में उसकी जिनसियत न होती तो वो कब मेरी तरफ तवज्जो करता। कोई ऐसी बात जरूर होगी जो मुझ में और उसमें मुश्तरक होगी, इसीलिए वो मेरी तरफ मतवज्जो हुआ है। जिल्द दोम हिकायत नंबर 49। एक परिंदे के गैर जिन्स परिंद के साथ उड़ने और चरने का सबब। एक अक्लमंद ने जब एक कव्वे और लक को इकट्ठे देखा तो हैरान हुआ। जुस्तजू की कि इनमें कदरे मुश्तरक क्या है जिसकी वजह से ये इकट्ठे हैं। गौर से देखा तो मालूम हुआ कि दोनों लंगड़े हैं। साथ रहने के लिए कदरे मुश्तरक का होना जरूरी है। नबी जो कि अर्श का शाहबाज है और मुनकर जो कि जमीन का उल्लू है, कैसे मानूस हो सकते हैं। इल्लीयीन का खुर्शीद सिज्जीयीन की चमगादड़ों के लिए अजनबी है। एक वो जो अपने कर्म से मखलूक को शर्मिंदा करता है, वो अपनी बेसरो समानी पर शर्मिंदा के बराबर कैसे हो सकता है। अगर गंदगी का कीड़ा बाग की खुशबू से भागे तो वो नफरत बाग का कमाल है। अल्लाह के नेक बंदों की गैरत का तकाजा यह है कि खुदा के दुश्मन उनसे दूर रहें। बुरों का भलों से मेल
बलों के नुकसान का सबब बनता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का सीना मुबारक कई बार शक किया गया ताकि उनको मुकम्मल तौर पर पाक कर दिया जाए। ये मंशाए इलाही था ताकि दूसरे उनकी बराबरी का दावा न कर सकें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो कमालात थे, एक तो फरिश्तों का उन्हें सजदा करना जो कि मकबूल मखलूक थी, और दूसरे शैतान का सजदा से इनकार क्योंकि वो नामकबूल मखलूक थी। अगर शैतान भी सजदा कर देता तो आदम अलैहिस्सलाम का दूसरा कमाल मफकूद हो जाता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कमाल पर जिस तरह फरिश्तों का सजदा गवाह है, उसी तरह शैतान का इनकार भी गवाह है। जिल्द दोम, हिकायत नंबर 50। धोखे में मुब्तला का रीछ की चापलूसी पर भरोसा करने का बाकी किस्सा। वो शख्स सो गया और रीछ उसकी मक्खियां उड़ाता था। जिद से मक्खियां फिर वापस आ जाती थी। रीछ को मक्खियों की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने पहाड़ से एक भारी पत्थर उठाया और उस शख्स के मुंह पर बैठी हुई मक्खियों पर मारा और उसके मुंह का कीमा बना दिया। बेवकूफ की दोस्ती रीछ की दोस्ती जैसी होती है। उसका अहदो पैमान मजबूत नहीं होता, उसकी बातें ज्यादा मगर वफादारी कमजोर होती है। बेवकूफ की अक्ल पर उसका नफ्स हाकिम होता है और वो हाकिम की किसी किस्म की पाबंदी बर्दाश्त नहीं करता और अहद को तोड़ता रहेगा। मोमिन से अल्लाह का खिताब है, अपने अहदों की हिफाजत करो। जो शख्स ये समझ ले कि अहद किससे करता है तो वो अहद की खूब हिफाजत करता है। बाज बंदगाने खुदा फनायत के उस मुकाम पर होते हैं कि उनके साथ किया हुआ अहद अल्लाह के साथ समझा जाता है। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।